سلیم صافی صاحب کی طرف جاتے ہیں. صافی صاحب, جو گفتگو آپ نے عمر چیبہ صاحب کی سنی, ایک معروف شعر یاد آتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ہم ایک ٹکنگ بام ہیں, اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حادثہ ہو جاتا ہے, شور مچاتے ہیں اور پھر خاموش ہو کے اگلے حادثے کا انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ خالص حادثہ تھا, کچھ نہیں بدلے گا, یا خالص نااہلی تھی؟ نہیں, دیکھیں کہ اس حادثے کی پرورش وقت جو ہے وہ برسوں سے کر رہا تھا, اور یہ صرف آج کا نہیں ہے. دیکھیں یہ پیمز اسپتال جو ہے یہ اسلام آباد کی جتنی آبادی کے لیے بنایا گیا تھا, آج وہ آبادی 10 گنا اس سے بڑھ گئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں گلگت بلتستان تک کے لوگ جو مریض آتے ہیں تو وہ یہیں پہ لائے جاتے ہیں. اس میں پشاور, مردان, چارسدہ ان علاقوں سے بھی مریضوں کو لایا جاتا ہے. آپ اگر پیمز اسپتال کے اندر جائیں تو وہ ہاسپٹل کم دکھائی دیتا ہے, اور ایک میلہ, بالکل ایک میلے کا سماع ہوتا ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس میں مریض کون ہے, اور اس میں اٹینڈنٹ کون ہے, اور اس میں ہاسپٹل کے عملے والا کون ہے. پھر دیکھیں کہ یہ ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک وارننگ ہے جو اللہ نے ہمیں اس آج کے المناک حادثے کی صورت میں دی ہے. کہ دیکھیں وہ ہاسپٹل جو کہ وفاقی دارالحکومت میں واقع ہے, جس میں وزیر مشیروں وہ آتے جاتے ہیں, عیادتوں کے لیے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات علاج کے لیے بھی جاتے ہیں. یقیناً جو نجی اسپتال ہے یہاں پہ اکثر لوگ اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا وزیر مشیر اس میں جاتے ہیں, لیکن بہرحال سینئر ڈاکٹرز اور یہ سب کچھ پیمز میں ہیں, تو اس لیے ان سب کچھ کے باوجود بھی وزیر مشیروں کا یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے. اور تو آپ دیکھیں کہ اگر اس ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو ہمارے ملک کے باقی حصوں میں جو ہاسپٹل واقع ہے ان کی کیا حالت ہوگی, اور وہاں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ تو آپ نے ایک سب جو معصوم بچے اس میں جھلس گئے آگ میں, ان کو دیکھ لیا, لیکن یہ کہ روٹین میں جو پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا وہ تو روزانہ, لیکن وہ اسی طرح اکٹھے ہو کے لوگ نہیں مرتے, اس لیے وہ ہماری خبر نہیں بنتی. ورنہ روزانہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پھر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ اس ہاسپٹل کے اندر سب سے زیادہ ہے, اور وہ ہے سفارش کی بیماری. کیونکہ یہاں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا وزیروں مشیروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اور اس بنیاد پہ اگر چیف ایگزیکٹو بھی لگتا ہے, ان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی لگتا ہے, تو وہ بھی عموماً سفارش پہ لگتا ہے. پھر ڈاکٹروں کی اپنی ایک بڑی مضبوط لابی ہے. آپ حکومت اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہے تو وہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں, وہ ہڑتال کر لیتے ہیں جو نجی اسپتالوں کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہاسپٹل کی یہ آج سے نہیں ہے, سالوں سے اس کی یہ بری حالت ہے, اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ادروائز پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ روزانہ, یہ خود جو ہمارے وزیر صحت ہے مصطفیٰ کمال صاحب, وہ آن ریکارڈ ہیں, وہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں, میرے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اس پیمز ہاسپٹل کو ہاسپٹل کہنا یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک وہ لگتا ہے شہر ناپرسان لگتا ہے,
मुस्तफा कमाल साहब आज से कई महीने पहले ये कह चुके थे, लेकिन कई महीने वो लेकिन वजीर उसके रहे बावजूद हैं। अभी पूछा तक जाएगा कि अगर आप वजीर हैं, सेहत के वजीर हैं, आपको अस्पताल नहीं लगता, शहर नापुरसा लगता है, तो आपने इतने महीनों में 1.5 साल, आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या ज़रूरी नहीं है कि तमाम अस्पतालों का, रावलपिंडी से हमारे पास खबर आई, हमारे एक नुमाइंदे को बताया गया कि वहाँ भी फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं है, कि तमाम अस्पतालों में कम से कम ये बुनियादी ज़रूरत तो होनी चाहिए? जी यकीनन मुसीबत ये है कि हादसात होते हैं और हम एक दो दिन उस पर डिस्कशन करके उसको भूल जाते हैं, और हादसात भी मसलन इससे पहले साहिवाल के हॉस्पिटल में 11 बच्चों की मौत वाक़या हुई थी इसी तरह के एक वाक़े के नतीजे में, और ज़ाहिरी बात है कि उसमें गफलत भी होती है, उसमें हमारे अस्पतालों के जो आलात होते हैं, उनके जो औजार होते हैं, उनकी अबतरी भी होती हैं, फिर स्टाफ ड्यूटी भी नहीं करता, अपने फ़र्ज़ को भी नहीं पहचानता। तो ये सारी मुसीबतें हैं, और मैं जो पहले अर्ज़ किया कि देखें अगर वफाकी दारुल हुकूमत का जो हॉस्पिटल वो जो कि वज़ीर आज़म हाउस से चंद मिनट के फासले पे वाक़या है, तो उधर अगर ये हालत है कि दरवाज़ों को ताले लगे हुए हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे तो बहुत सारे हॉस्पिटल तो ये तो आज शुक्र है कि फायर ब्रिगेड वाले जल्दी पहुंच गए, तो ये आग जो है और ये ब्लॉक चूंकि कुछ फासले पे है तो ये बाकी हॉस्पिटल में भी फैल सकता था। लेकिन आप अगर देखें तो मैं इसलिए इस हॉस्पिटल की मिसाल आपको दे रहा था कि वो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों के हॉस्पिटल से भी उसकी हालत अबतर होती है, उधर रश को देख के और अबतर सूरत हाल को देख के। तो आप अंदाज़ा लगाए कि हमारे मुल्क में बाकी जो अस्पताल हैं उनमें क्या हालत होगी। ठीक है साहब। तो वहां पे इसको मिसाल बना के एक तो मुहासबा होना चाहिए इस गफलत का, इस जुर्म का, जो मुर्तकिब अफराद हों, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती हो, वो बेशक जिस भी लेवल पे हो, तो उन लोगों को सजा मिले। दूसरा, इसको मिसाल बना के हम अपने हॉस्पिटल, एक तो हम अपने हेल्थ बजट को भी हमें बढ़ाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे एजुकेशन और हेल्थ का बजट जो है वो मुहज़्ज़ब दुनिया के और डेवलप्ड कंट्रीज के बजट की बनिस्बत बहुत कम है। और फिर जो हॉस्पिटल हैं भी, तो उन हॉस्पिटल में इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए कबल इसके कि कोई हादसा हो जाए, और हादसा हो जाए हम और इसी तरह रोना धोना करें, तो उससे पहले उसका तदारुक होना चाहिए। ठीक है, कम है वक्त हमारे पास, वो बहुत हम चाहेंगे एजाज आप कमेंट कीजिएगा, क्या जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू थोड़ी सी इनसेंसिटिव थी, उनका मुहासबा होना चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। किस तरह आप आज के मौजू को समझते हैं कि सम अप करेंगे हम? देखिए, बात यह है कि हम सिस्टम को ठीक करना मुश्किल और पेचीदा काम है, उस तरफ नहीं जाते। हमें चाहिए फौरी इस्तीफे, हमें चाहिए सुल्तान राय की बड़कें, वो होती हैं और हम खुश हो जाते हैं। असल इशू है रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ। असल इशू है मेरिट, असल इशू है दुरुस्त जगह पर दुरुस्त आदमी की तैनाती। हमें उसे इंश्योर करना होगा। आप आज एक इस्तीफा ले लेंगे तो कल क्या दोबारा वाकया नहीं होगा? 2023 में भी वाकया हुआ था, उससे पहले भी वाकया हुआ था। हम गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, नई गलती नहीं करते। हमें इंश्योर करना होगा कि हम जो लॉज, जो रूल्स, जो एसओपीज बनाएं, सबसे पहले ये कि उस पर दुरुस्त आदमी तैनात करें, और दुरुस्त आदमी की तैनाती, मेरिट पर तैनाती को इंश्योर करेंगे, दुरुस्त जगह पर दुरुस्त आदमी बैठा होगा तो गलतियों का जो एहतमाल है वो कम होगा। इसके लिए सिस्टम ठीक करना होगा। ठीक है एजाज, हमारे पास वक्त कम है, हम चाहेंगे कि सबका मौक़िफ़ शामिल हो सके। उमर चीमा साहब आपकी तरफ आएंगे। यही ब्यूरोक्रेसी है, जब अवाम अपना पेट काट रही थी, उससे कुर्बानी मांगी जा रही थी, इन ब्यूरोक्रेसी की मुराद बढ़ाई जा रही थी, उनकी कारकर्दगी ये है।
वजी वैसे आम तौर पे जो एक तनख्वाहों पे बात होती है, मुझे उस पर इतराज नहीं है। मैं कहता हूं कि जितनी तनख्वाहें हैं इससे भी इनकी डबल कर दें, लेकिन यह है कि इनकी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, जिस काम के लिए इनको जो असाइनमेंट मिली है क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी अटेंशन किसी और तरफ चली जाती है। हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए। हम कितना ज्यादा पैसे का, वसाइल का ज़या इसी तरह हो जाता है, उसको रोकना चाहिए। तो इनका परफॉर्मेंस ऑडिट बहुत जरूरी है, उस तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा जानी चाहिए। बाकी इनको मैं कहता हूं कि जो इनको अभी मराद हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, बड़े लड़के जो इनमें ब्रिलियंट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, सीएसएस के जरिए भी आए होते हैं, जो डॉक्टर भी बनते हैं, कोई नालायक लोग नहीं होते। आप इनको मराद जरूर दें, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ऑडिट करें कि क्या, अगर आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी को पिम्स का लगाया तो उसको टास्क क्या दी गई है कि 6 माह में पहले क्या होना चाहिए, तुमने 3 साल के अरसे में क्या करना है, बिल्कुल क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा, उस बुनियाद पे उसको एक्सटेंशन भी मिलनी चाहिए। ठीक है रीमा, योर फाइनल कमेंट। So my final comment is that both things go together. एहतसाब भी होना चाहिए और आइंदा इस तरह के वाक़यात ना पेश आए, इस तरह की सानहें ना हो, उसके लिए भी आपको इक़दाम, ठोस इक़दाम जो है वो लेने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, ईदर और नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी जो है मेरी नज़र में वो इसेंशियल है फैक्ट्स इस्टेब्लिश होने के बाद।